So, good morning. This is the 10th lecture on the chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. In this lecture, we will talk for RNA, which is another type of nucleic acid, its structure and types. आपला जो 6वा चॅप्टर आहे मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स, जो 4 क्वेश्चन नीटमध्ये देतो त्याच्यावरचं आता हे 10वं लेक्चर आहे. आत्ता आपण या लेक्चरमध्ये कशावर बोलणार? RNA, जो एक प्रकारचं न्यूक्लिक ॲसिड आहे, व त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि या RNAचे टाईप्स कोणते आहे. नाउ दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर बिकॉज the future topic, I mean protein synthesis, transcription and translation. So these activities are done by this molecule RNA. So you must know everything about RNA so that the future part shall be very easy for understanding. मैंने कहा कि हमारा ये 10वां लेक्चर जो RNA पे है, एक प्रकार का वो न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी पूरा हो गया. अब ये दूसरा न्यूक्लिक एसिड हमने शुरू किया आरएनए, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर और उसके प्रकार, टाइप्स. ये नीट की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर हमारे अगले जो लेक्चर आने वाले हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस पे है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिसमें आरएनए इन्वॉल्व है. तो वो चीज़ समझने के लिए आपको आरएनए के बारे में हर चीज़ मालूम होना ज़रूरी है. तो देखो, इसकी शुरुआत हम लोग ऐसे करेंगे. लेट अस गो बैक. इन 1869 फ्रेडरिक मिशर discovered a new chemical from pus-cell nucleus and call it as nuclein, and because it exhibit the acidic property, it was called nucleic acid. So 1869 Friedrich Mischer, from pus-cell nucleus he discovered a new chemical and called it as nuclein, and because it shows the acidic property, it is better to call nucleic acid. And we know that nucleic acid are of two types depending upon the type of sugar. तो 1869 फ्रेडरिक मिशरनी पस सेलच्या न्यूक्लियसमधनं एक नवीन केमिकल शोधलं, त्याचं नाव ठेवलं न्यूक्लिन. तो ॲसिडिक असतो म्हणून त्याला म्हणतात न्यूक्लिक ॲसिड. तो 1869 में हमें न्यूक्लिक एसिड नाम के केमिकल पता हो गए. अब ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के क्यों हैं? तो सर आपने ऑलरेडी बताया कि उनमें जो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर, क्या वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है या फिर राइबोस शुगर है? यदि न्यूक्लिक एसिड की शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो उस न्यूक्लिक एसिड को हम कहने लगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, and it is acronymed as DNA. To see, DNA is a type of nucleic acid. Now, if the nucleic acid has another kind of pentose sugar called ribose, now that nucleic acid is ribose nucleic acid, acronymed as RNA. And hence we said nucleic acid are of two types, DNA and RNA. As everything about DNA is known to you, in previous 5 lectures we talked about DNA, structure of DNA as per
the double helix DNA model by Watson and Crick. We have also seen the two types of DNA, prokaryotic, which is circular DNA, eukaryotic, which is linear DNA. We have also seen that the two cell organelle, mitochondria and chloroplast, have their own DNA, which is again circular. We have also seen how DNA is packed in our nucleus. According to Korenberg and Thomas, 1974, nucleosome solenoid model, this DNA is packed with histones and non-histone protein. We have also seen how prokaryotic DNA is packed. It is packed with non-histone protein and RNA connector. Then we have seen the replication of DNA, how it produces its replica. So it replicates by semi-conservative method, both prokaryotic and eukaryotic DNA. The eukaryotic DNA replication is forked replication and prokaryotic DNA replication is theta replication. Now same thing in Marathi. आता बघा, न्यूक्लिक ॲसिड तर दोन प्रकारचे आहे, DNA आणि RNA. मागच्या 5 लेक्चरमध्ये आपण DNA बद्दल प्रत्येक गोष्ट समजून घेतली आणि आपल्याला ती समजली की DNA हा डबल स्ट्रँडेड असतो. त्याच्या 2 स्ट्रँड एका कॉमन ॲक्सिसवर राईट हँडेडली कॉईल असतात. त्याचं डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम किंवा 2 नॅनोमीटर असतं. त्याचा प्रत्येक टर्न 3.4 नॅनोमीटर किंवा 34 एंगस्ट्रॉमचा असतो. वॉटसन आणि क्रिकनी जे मॉडेल दिलं ते आपण कंप्लीट केलं. आपल्याला आता प्रोकॅरियोटिक सर्क्युलर DNA, युकॅरियोटिक लिनियर DNA समजतो. या दोघांचं रेप्लिकेशन, या दोघांचं पॅकेजिंग आपण पाहिलं. म्हणजे आता DNA बद्दल तर प्रत्येक गोष्ट आपल्याला समजते. आत्ता आपण चालू करतोय RNA, म्हणजे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट इज द टाइटल. मतलब अब हम लोग RNA का स्टडी कर सकते. अब हमारी पहली लाइन क्या आएगी? RNA क्या है? तो सर RNA इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. सो न्यूक्लिक ॲसिडचा हा दुसरा प्रकार आहे. पहिला प्रकार DNA आपण कंप्लीट केला. आता तो हमारी पहली लाइन होगी कि RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, is another type of nucleic acid. So it is another type of न्यूक्लिक एसिड. जब हमने न्यूक्लिक एसिड का कंसेप्ट शुरू किया था, शायद तीसरे लेक्चर में, तब कहा था कि DNA हो या RNA, बोथ आर लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. म्हणजे सर DNA हो की RNA असो, दोघंही काय आहे? तर लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. म्हणजे न्यूक्लियोटाइड, 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 so many nucleotide which are connected to each other by phosphodiester bond. So actually न्यूक्लिक ॲसिड जो आहे तो आपण ॲनिमेटेड एक्सपेरिकल घेतला की मोनोन्यूक्लियोटाइड, डायन्यूक्लियोटाइड, ट्रायन्यूक्लियोटाइड अँड सो ऑन polynucleotides. Any two nucleotide are connected by phosphodiester bond. तो DNA हो या फिर RNA हो, दोनों क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. फिर हमने कहा कि अगर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो इफ we study the structure of nucleotide, had it been so that both the type of nucleic acid are long chain of nucleotides, and if we study the structure of one nucleotide, we will understand all nucleotides, ultimately the nucleic acid.
जर DNA आणि RNA दोघंही पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे आणि जर आपल्याला एक न्यूक्लियोटाइड समजलं तर सर्वच न्यूक्लियोटाइड समजले, आणि जर सगळे न्यूक्लियोटाइड समजले म्हणजे आपल्याला DNA समजला आणि RNA समजला. कारण बेसिक युनिट, स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड. फिर हमने कहा कि एनी न्यूक्लियोटाइड is a combination of sugar plus nitrogen base plus phosphate. म्हणजे हा जो न्यूक्लियोटाइड आहे, एनी वन ऑफ द, कोणताही न्यूक्लियोटाइड असो, तो तीनच गोष्टीचा बनला. त्याच्यात आहे शुगर, नाइट्रोजन बेस आणि फॉस्फेट. फिर मैंने आपको बताया कि कैसे बनता न्यूक्लियोटाइड. मग मी एक शुगर घेतली, त्याच्या पहिल्या कार्बनला लावला नायट्रोजन बेस आणि 5व्या कार्बनला लावला फॉस्फेट. तो हमेशा न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है, पेंटोज शुगर, उसके पहले को नाइट्रोजन बेस और 5वें को रहता फॉस्फेट. उस वक्त हमने ये भी कहा कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड. शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड. आणि जर न्यूक्लियोसाइडला फॉस्फेट लागला की न्यूक्लियोटाइड. तो ये 3 चीजें हम निकालेंगे. तो शुगर, इट्स अ पेंटागोनल रिंग. शुगर इज अ पेंटागोनल रिंग having 5 carbon. 1, 2, 3, 4 and 5, of which the 4 carbon are in ring and 5th is outside the ring. म्हणजे जी शुगर असते ती 5 कार्बनची असते, त्यातले 4 कार्बन रिंगमध्ये असतात, 5व्या रिंगच्या बाहेर असतो. To each carbon there is H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH. आता हे जे तयार झालं स्ट्रक्चर, तर ही झाली पेंटोज शुगर और इसका नाम. तो सर 1, 2, 3, 4, 5 C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 9 और 1 10 H10. 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 O5. तो C5 H10 O5 म्हणजे कोणती शुगर? राइबोज. तो ये शुगर कौन सी है? राइबोज. और जिस न्यूक्लिक एसिड के हर न्यूक्लियोटाइड में होगी राइबोज शुगर, ज्या न्यूक्लिक ॲसिडच्या प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडमध्ये असेल राइबोज शुगर, तर तो झाला राइबोज न्यूक्लिक ॲसिड. आणि इच्छा सेकंड कार्बनचा ऑक्सीजन जर काढला तर, यदि इस शुगर के सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन निकाला तो अब ये जो थी राइबोज वो अब बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज. आणि जर इथे ऑक्सीजन नसेल तर ही डीऑक्सीराइबोज शुगर, आणि जर हर न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो फिर ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA. तो देखो DNA और RNA दो है न्यूक्लिक एसिड. इनमें पहला फर्क कौन सा है? टाइप ऑफ शुगर. In DNA it is deoxyribose sugar.
सेकंड कार्बनला ऑक्सिजन नाही. इन RNA इट इज रायबोज शुगर. तो आता हे लक्षात ठेवा की प्रत्येक न्यूक्लिओटाइडमध्ये जर असेल रायबोज शुगर तर प्रत्येक रायबोज शुगरला सेकंड कार्बनला आहे OH फ्री. मतलब सर मैंने कहा कि RNA में जितने न्यूक्लियोटाइड्स है हर न्यूक्लियोटाइड की शुगर राइबोज है, तो हर राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन को OH फ्री है और इसीलिए RNA इज मोर रिएक्टिव, अनस्टेबल. अगर ये DNA की शुगर होती तो यहां नहीं है ऑक्सिजन, तो दिस इज लेस रिएक्टिव. म्हणजे DNA हा लेस रिएक्टिव्ह असतो कारण त्याच्या प्रत्येक न्यूक्लिओटाइडमध्ये जी शुगर आहे डिऑक्सिरायबोज त्याच्या सेकंड कार्बनला ऑक्सिजन नाही म्हणून तो लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल. अब देखो हमें तो सीखना है RNA. म्हणजे शुगर कोणती पाहिजे? रायबोज C5H10O5. आता नाइट्रोजन बेस. तो याद करो हमने कहा कि नाइट्रोजन बेस इन न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप. नाइट्रोजन बेस इन न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA नहीं मतलब कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो उसमें नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है. विचार दे. सो इट इज प्यूरीन एंड पायरीमिडीन. तो आता शुगर समजलं ना. आता नाइट्रोजन बेस. तर नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप प्यूरीन एंड पायरीमिडीन. प्यूरीन आर डायसायक्लिक डबल रिंग कंपाऊंड. पायरीमिडीन आर हे सगळं शिकवलेलं आहे मी कन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड टायटलमध्ये. मी ते सगळं रिवाइज करून देतो आहे RNAचं स्ट्रक्चर शिकवण्यासाठी. तो प्यूरीन आर डायसायक्लिक डबल रिंग कंपाऊंड. पायरीमिडीन आर मोनोसायक्लिक सिंगल रिंग कंपाऊंड. सो प्यूरीन आर ॲडेनिन ग्वानिन. पायरीमिडीन आर सायटोसिन थायमिन युरासिल. ॲडेनिन ग्वानिन प्यूरिन असतात. साइटोसिन थायमिन युरासिल पायरीमिडीन्स असतात. तो अब आप याद करो कि जब हम DNA की बात कर रहे थे तो प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन. DNA में पायरीमिडीन्स आर साइटोसिन एंड थायमिन. अब RNA में प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन म्हणजे DNAचे प्यूरिन RNAचे प्यूरिन सेम असतात. DNA असो की RNA प्यूरिन्स आर सेम एडेनिन एंड ग्वानिन. अब पायरीमिडीन इन DNA it is cytosine thymine but in RNA thymine is absent. The pyrimidine of RNA are cytosine and uracil. तो AG प्यूरिन CU पायरीमिडीन RNA मध्ये थायमिन नसतो. थायमिन इज रिप्लेस बाय युरासिल. अगर इस शुगर को पहले कार्बन को कोई भी एक नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए तो म्हणजे शुगरच्या पहिल्या कार्बनला 4 पैकी कोणती नाइट्रोजन बेस जर अटॅच झाली बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड की तयार होतो न्यूक्लेवोसाइड. सो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लेओसाइड. तो अगर यहां पर एडेनिन अटैच है तो एडेनिन न्यूक्लियोसाइड एडेनिन राइबोन्यूक्लियोसाइड
पर उसका नाम क्या है? एडेनोसिन। ग्वानिन अटैच है तो ग्वानोसिन। साइटोसिन अटैच है तो साइटिडीन। और यूरासिल अटैच है तो यूरिडीन। मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है 11 की बुक में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें वहाँ भी है। उसके कॉन्टेक्स्ट में 2 बार नीट में क्वेश्चन आए थे कि यूरिडीन क्या है, तो सर न्यूक्लियोसाइड है। और यूरिडिनाइलिक एसिड क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड है। तो सर आता समजा शुगर प्लस नायट्रोजन बेस म्हणजे न्यूक्लियोसाइड. आता याला जर आपण फॉस्फेट लावला तर तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड. तो यहां 5वें कार्बन को फॉस्फेट जुड़ेगा. पाचव्या कार्बनला अटॅच होईल फॉस्फेट. आत्ता हा बनला न्यूक्लियोटाइड. मग इथे जर ॲडेनिन असेल तर ॲडेनिन रायबो न्यूक्लियोटाइड, पण त्याचं नाव ॲडेनायलिक ॲसिड. ॲडेनायलिक ॲसिड. ग्वानायलिक ॲसिड. सायटिडिनायलिक ॲसिड. यूरिडिनायलिक ॲसिड. तो 4 प्रकारचे न्यूक्लियोसाइड, 4 प्रकारचे न्यूक्लियोटाइड. तो जसा हा एक न्यूक्लियोटाइड आहे, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट झाला एक न्यूक्लियोटाइड. ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड. और जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. एंड दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन containing ribose sugar, uracil instead of thymine and single stranded is RNA. ही पॉलीन्यूक्लियोटाइडची चेन ज्याच्या प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडमध्ये रायबोज शुगर आहे, थायमिनच्या ऐवजी युरासिल आहे आणि जी सिंगल स्टँडर्ड आहे, तसा असतो RNA. मग सर DNA कसा असतो? अशा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अशा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिकॉज DNA इज डबल स्टैंडर्ड जनरली. हर न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर म्हणजे इथे ऑक्सिजन नाही, एंड युरासिल की बजाय थायमिन. जर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन असतील, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडमध्ये डीऑक्सीराइबोज शुगर असेल आणि युरासिलच्या ऐवजी थायमिन असेल, तर मग तो असतो DNA. तो हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, दैट इज 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है 2 या 3 मार्क के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA. बट बिफोर दैट अभी भी आपको 3-4 फर्क मालूम ही है कि DNA ची शुगर डीऑक्सीराइबोज, RNA ची शुगर राइबोज. DNA डबल स्टँडर्ड असतो, RNA सिंगल स्टँडर्ड असतो. DNA मध्ये थायमिन असतं, RNA मध्ये यूरासिल असतं. ये तो चीज़ें आपको मालूम है, पर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी. तो आत्ता आपल्याला पाहायचं आहे RNAचं स्ट्रक्चर. तो RNA क्या है?
another type of nucleic acid. RNA is a type of nucleic acid. Like DNA, it is also a long chain of nucleotide. So, like DNA, it is long chain of nucleotides. म्हणजे तुम्हाला न्यूक्लिओटाइड्स काढावं लागतील आणि ते अटॅच करावं लागतील. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए हा कसा असतो? सिंगल स्ट्रैंडेड. तो अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बनाएंगे चेन. ओके, तो देखो, राइबोस शुगर म्हणजे C5H10O5. यहाँ OH होगा. सेकंड कार्बनला OH असतो आरएनए मध्ये. ये भी शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर. तो ह्या झाल्या राइबोस शुगर. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. हर शुगर के पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस AGCU. तो सर पहिल्याला नाइट्रोजन बेस, यूरासिल, ॲडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस म्हणजे न्यूक्लिओसाइड्स. यूरिडीन, ॲडेनोझिन, ग्वानोझिन, साइटिडीन हे न्यूक्लिओसाइड आहे. आता पाचव्याला फॉस्फेट. सो पांचवे को फॉस्फेट. नाउ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड. आता हे सगळे काय झाले? न्यूक्लियोटाइड झाले. इनके नाम यूरिडिनाइलिक ॲसिड, ॲडेनाइलिक ॲसिड, ग्वानाइलिक ॲसिड, साइटिडिनाइलिक ॲसिड. हे नाव लक्षात ठेवा बरं, नीटमध्ये क्वेश्चन असतो. आता हे झाले सगळे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. तो सर क्या सबूत है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है? सेकंड कार्बनला OH फ्री आहे ना. आता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. कसा बनतो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो सर एक न्यूक्लियोटाइड के पांचवे को जो फॉस्फेट रहता वो पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन को अटैच होता. फॉस्फेट which is attached to fifth carbon of one nucleotide will attach third carbon of neighboring nucleotide. फॉस्फेट जो एका न्यूक्लियोटाइडच्या पाचव्या कार्बनला अटॅच आहे तो शेजारच्या न्यूक्लियोटाइडच्या तिसऱ्या कार्बनला अटॅच होतो. फॉस्फेट जो एक न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन को अटैच है जब वो पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन को अटैच होगा तो हे बनले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो ये बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ पाचव्याला फॉस्फेट फ्री म्हणजे 5' एंड. आपण म्हटलं होतं कि 5' एंड मतलब न्यूक्लियोटाइड के पांचवे को फॉस्फेट फ्री. अब यहां देखो 3' एंड मतलब तीसरे कार्बन को OH फ्री. म्हणजे सर लाइक DNA RNA also have free ends.
जसं DNA पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे तसं RNA पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे. पण इथे सिंगल पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे, त्यालाही फ्री एंड्स आहे 5' अँड 3'. तो हे झालं RNAचं स्ट्रक्चर. तो व्हॉट इज RNA? RNA is another type of nucleic acid. Like DNA, it is a long chain of nucleotide. It is single-stranded. In a polynucleotide chain, 4 types of nucleotides are connected to each other by phosphodiester bond. It has 5' and 3' ends also. आता आपल्याला समझलं कि RNAचं कसं असतं स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे कि फिर RNA DNA से कैसे अलग है. तो RNA बद्दल आत्ता आपल्याला काय समजलं. सर RNA एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है. RNA सिंगल स्ट्रैंडेड रहता. उसकी सिंगल स्ट्रैंड माने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें 4 प्रकार के माने हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, पर उनके प्रकार मात्र 4 होंगे. और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. RNA को भी फ्री एंड रहते 5' फॉस्फेट फ्री, 3' OH फ्री. आत्ता आपण पाहू की RNA जो आपल्याला शिकायचा आहे तो DNA पेक्षा कसा वेगळा आहे. तो पहला फरक नंबर ऑफ स्ट्रैंड का. तो सर RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड DNA इज डबल स्ट्रैंडेड. दूसरा फरक शुगर का. The sugar of RNA is C5H10O5. That is ribose. And in DNA the sugar is C5H10O4 deoxyribose. तो RNA मध्ये राइबोज आहे म्हणजे दुसऱ्या कार्बनला OH आहे. प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडच्या दुसऱ्या कार्बनला OH आहे. तो फ्री है, तो रिएक्टिव है. और इसीलिए ध्यान रहे कि कोई भी RNA हो, उस RNA की जो लॉन्ग चेन है माने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके हर न्यूक्लियोटाइड के सेकेंड कार्बन को OH फ्री है. इसलिए RNA इज highly reactive, it is unstable. Faster mutability. तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन वायरसेस को RNA जीनोम होगा उनमें म्यूटेबिलिटी फास्टर है जी. तो सर अभी जिसकी बात हो रही है संसार में, कोरोना वायरस, जिससे कोविड-19 डिसीज होता, जिसका पैंडेमिक फैला है, तो हा जो कोरोना व्हायरस आहे याचा जिनोम म्हणजे जेनेटिक मटेरियल, यांचा जिनोम काय आहे RNA आहे. आणि RNA असल्यामुळं त्या RNAच्या प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडच्या शुगरला सेकंड कार्बनला OH फ्री आहे म्हणून तो अनस्टेबल आहे, फास्ट म्यूटेट होतो. आता तुम्ही ऐकलं असेल ना कि यूरोप में उसकी एक नई स्ट्रेन आई है जिसके कुछ रोगी हिंदुस्तान में भी पाए गए. तो ही फास्टर म्यूटेबिलिटी कशामुळं आहे? 3 गोष्टीमुळं. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की हे जे फास्टर म्यूटेबिलिटी आहे त्याचं पहिलं कारण आहे हायड्रॉक्सिल ग्रुपमुळे तो फ्री आहे, तो रिॲक्टिव्ह झाला म्हणून तो अनस्टेबल आहे, फास्टर म्यूटेट होतो. DNAचंही म्यूटेशन होतं, पण RNA फास्टर म्यूटेबल है. RNA अनस्टेबल होने की दूसरी वजह है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है.
तीसरी वजह है थायमिन की बजाय यूरासिल होना. मग सर थायमिन जरा स्टेबल आहे आणि युरासिल थोडं अनस्टेबल आहे. ते बियॉन्ड स्कोप जाते आपल्या डिस्कशनच्या. सो एनिवे, द शुगर इज राइबोज in RNA. The sugar is deoxyribose in DNA. तीसरा फर्क, नाइट्रोजन बेस. So in DNA A, G, C, T. In RNA A, G, C, U. So thymine is replaced by uracil in RNA. That makes RNA unstable. अब चौथा फरक. तो सर डीएनए डबल स्ट्रँड आहे, डीएनए मध्ये डीऑक्सीरायबोज शुगर आहे, डीएनए मध्ये AGCT नाइट्रोजन बेसिस है. आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, उसमें राइबोज शुगर है, उसमें AGCU नाइट्रोजन बेसिस है. अब देखो डीएनए में अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन. कोई भी डीएनए हो, कोई भी डीएनए हो, उसमें जितने होंगे प्यूरिन माने A+G, उतने ही होंगे पायरिमिडीन माने C+D. तो सर्टन डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2 टर्न. तो सर एखाद्या डीएनए मॉलिक्यूलला 2 टर्न असतील. तो एक टर्न म्हणजे 10 बेस पेयर. सो 1 टर्न 10 BP. तो 1 टर्न 20 बेसेस. 10 बेस पेयर म्हणजे 20 बेसेस. जेवढ्या बेसेस तेवढे न्यूक्लियोटाइड. एक बेस तो एक न्यूक्लियोटाइड, और एक बेस तो और एक न्यूक्लियोटाइड. तो जितनी बेसेस उतने न्यूक्लियोटाइड. सो एक टर्न में 20 न्यूक्लियोटाइड है, तो 2 टर्न में होंगे 40 न्यूक्लियोटाइड या 40 बेसिस. आता जर याच्यात 40 बेसिस असतील ना, तर 20 असतील प्युरिन आणि 20 असतील पायरिमिडीन. 50-50%. तो वैसे इन डीएनए प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन. जेवढे A+G तेवढे C+D. तो सर आरएनए में क्यों नहीं? नॉट नेसेसरीली. आरएनए इज सिंगल स्टँडर्ड. म्हणजे ये सिंगल स्टँड 5' 3' AUGCUAC. अब देखो A 1 2, G 1, तो कितने हो गए यहां पे प्यूरिन? 3 पायरिमिडीन पा. C 1 2, थायमिनच्या जागी युरासिल 1 2. तो 3 प्यूरिन आणि 4 झाले पायरिमिडीन. सो इन आरएनए प्यूरिन and pyrimidine not necessarily 1:1. डीएनए मध्ये जेवढे प्यूरिन तेवढे पायरिमिडीन पक्का है, पर आरएनए में होंगे ही ऐसा नहीं. कोइंसिडेंटली हो भी सकते. जैसे यहां देखो AG 2 प्यूरिन, UC 2 पायरिमिडीन, बट नॉट नेसेसरी. अब आगे देखो, in case of DNA in a cell,
मैक्सिमम डीएनए इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। हमारा शरीर सेल से बना है। कोई भी सेल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो कहाँ है सर? मैक्सिमली इन न्यूक्लियस। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। So RNA is single stranded, the sugar is ribose, the bases are adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine is replaced by uracil, purine and pyrimidine not necessarily 1:1. It is found in nucleus as well as cytoplasm. और DNA is mainly found in nucleus. अब देखो, DNA produces daughter DNA. DNA produces daughter DNA by the process called replication. म्हणजे एक डीएनए मॉलिक्यूल स्वतःच्या 2 एक्झॅक्ट कॉपीज बनवू शकतं. एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी 2 एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते. प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. सो सेल्फ रेप्लिकेशन. पर आरएनए जो है वो बनता है फ्रॉम डीएनए. म्हणजे आरएनए इज ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए. So, no self replication. म्हणजे सर आप कहते डीएनए से डीएनए बन सकता, पर आरएनए से आरएनए नहीं बनता. आरएनए डीएनए से बनता बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. म्हणजे सर डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन आणि डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन. So RNA is produced from one strand of DNA by the process called transcription. तो डीएनए डबल स्ट्रँड, आरएनए सिंगल स्ट्रँड. डीएनएची शुगर डीऑक्सिरायबोज, आरएनएची रायबोज. थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय uracil. Purine pyrimidine ratio always 1:1, not necessary. Found in nucleus as well as cytoplasm. It has a capacity of self-replication, but it depends upon DNA for its production by the process called transcription. ये जो डीएनए है, it is more stable, less reactive. डीएनए असतो more stable, less reactive, and hence it is today's genetic material in most of the organisms of the earth. तो सर आप कहते कि डीएनए ये लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, और इसीलिए संसार के अधिकतम जीव का वो जेनेटिक मटेरियल है. और आरएनए इज अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव. आरएनए असतो अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव. तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है? बट इन फ्यू वायरसेस, आरएनए वायरसेस जैसे कोरोना वायरस, HIV वायरस, और संसार में शुरुआत में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था. म्हणजे तुम्ही म्हणता की जेव्हा पृथ्वी तयार झाली 450 crore years ago, 4.5
बिलियन ईयर्स अगो। तब धरती पे जीव नहीं थे, नहीं। 150 करोड़ ईयर्स बीत जाने के बाद, 1.5 बिलियन ईयर्स पास होने के बाद जीव आना शुरू हुए बाय केमिकल इव्होल्यूशन। तो शुरुआत में जो सजीव थे, पृथ्वीवरचे सुरुवातीचे जे सजीव होते, त्यांचं जेनेटिक मटेरियल होतं RNA. बट RNA इज अनस्टेबल, more reactive, and hence it is replaced by DNA. DNA is more stable. तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे बिटवीन DNA एंड RNA. अब हमें देखना है RNA का स्ट्रक्चर तो देख लिया कि RNA इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Like DNA, it's a long chain of nucleotide, and the nucleotides are connected by phosphodiester bond. It has 5' and 3' free end. Nitrogen bases are free, unpaired. तो ये भी एक डिफरेंस आप कर सकते. इन DNA bases always paired. म्हणजे 3' to 5' upward, 3' to 5' downward. A, G, C, T, A, T, C, G, A, T. Double bond, triple bond, triple bond, double bond, double bond. So DNA हमेशा डबल स्ट्रैंडेड है. और दो स्ट्रैंड होने की वजह से बेसिस हो गई पेयर. आणि म्हणून लिहिलं की बेसिस आर ऑलवेज पेयर्ड इन DNA. बट RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड. RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो बेसिस कशा आहे? अनपेयर. RNA एकच स्ट्रँड आहे ना, सिंगल स्ट्रँड. तर AGUCAC ह्या कशा आहे? अनपेयर. दुसरी स्ट्रैंड नहीं है. सो इन RNA बेसिस आर अनपेयर. तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर तुम्ही म्हणता की RNA सिंगल स्ट्रैंड है तो बेसिस अनपेयर है, बरोबर है, पर वो स्ट्रैंड ने अपने ही ऊपर कहीं फोल्ड की तो मतलब ह्या बेसिस कशा आहे? अनपेयर. पण RNA स्वतःवरच झाला फोल्ड. तो इथे A तर इथे U, इथे C तर इथे G, यहां A तो यहां U. तो नो डाउट, बिकॉज RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड, bases are unpaired. However, if it is folded upon itself, if it is folded upon itself, तो स्वतःवरच जर फोल्ड झालेला असेल तो bases are in pair. तो स्वतःवरच फोल्ड झाल्यामुळं बेसेस कशा झाल्या? पेयर्ड, बट इन अ फोल्डेड रिजन. आय रिपीट, RNA मध्ये नायट्रोजन बेसेस अनपेयर असतात, पण जर तो RNA स्वतःवरच फोल्ड झाला तर फोल्डेड रिजनमध्ये बेसिस पेयरही असतात. पण मग पेअरिंग कसं असेल? अगेन कॉम्प्लिमेंटरी बाय रूल. रूल काय आहे? A pairs with U by double bond, U pairs with A double bond, G pairs with C triple bond, C pairs with G triple bond, A pairs with U double bond. म्हणजे रूल तोच आहे. सो बेसेस आर ऑलवेज पेअर्ड इन DNA. बेसेस आर अनपेयर्ड. However, they may be found paired in a folded region. ये आपको क्वेश्चन आ सकता.
सो DNA डबल स्ट्रँडेड, RNA सिंगल स्ट्रँड. DNA मध्ये डीऑक्सिरायबोज शुगर, RNA मध्ये रायबोज. बेसिस इकडे AGCT, इकडे AGCU. DNA जो असतो तो न्यूक्लियसमध्ये असतो, RNA न्यूक्लियस किंवा सायटोप्लाझममध्ये असतो. DNA रेप्लिकेट होऊन DNA बनवतो, पण RNA DNA पासून बनतो बाय ट्रान्सक्रिप्शन. DNAच्या बेसिस पेयर्ड असतात, RNAच्या अनपेयर असतात. पेयर असू शकतात फोल्डेड रीजनमध्ये. सर और एक डिफरेंस आप लिख सकते, क्या? DNA इज ऑलवेज जेनेटिक मटेरियल. DNA नेहमी जेनेटिक मटेरियल असतं. किसी ने सुना है नॉन जेनेटिक DNA? नहीं. तो RNA is genetic material, but in some viruses. RNA is genetic material in some viruses, and elsewhere it is non-genetic. आप ध्यान दो, DNA नेहमी जेनेटिक मटेरियलच असतं. RNA जेनेटिक मटेरियल असू शकतं काही व्हायरसमध्ये, पण इतर ठिकाणी जो RNA असेल तो नॉन जेनेटिक असतो. इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथसिस. DNA इज बेटर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. RNA इज बेटर टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन. ये भी आप फर्क कर सकते हैं, एंड मेनी मोर. तो अभी हम लोग DNA और RNA के बेसिक डिफरन्स देख लिए. आता आपल्याला पाहायचं आहे टाइप्स ऑफ RNA. तो सर अभी तो पता चल गया, RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस. RNA हा जेनेटिक मटेरियल आहे काही व्हायरसमध्ये, बाकी ठिकाणी जो कसा आहे नॉन जेनेटिक. पण त्याचे दोन प्रकार झाले, जेनेटिक RNA अँड नॉन जेनेटिक RNA. आय विल एक्सप्लेन. फर्स्ट करो. फॉर इंस्टेंस, these are all organisms present on earth. ये जीव सृष्टि के सारे जीव आहे. आपल्या पृथ्वीवर जेवढे जीव असतील ते सगळे इथे आहे. थोड़ी देर के लिए हम लोग वायरस को सेपरेट करेंगे. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता हे जगातले सगळे सजीव आहे. हो, प्लांट्स, ॲनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंगाय, मोनेरन्स, सगळे सजीव आहे. तो थोड्या वेळासाठी वेगळे करा वायरस. वायरस को छोड़ के दुनिया में जितने सजीव है उन सब में DNA प्लस RNA है. व्हायरसेस सोडून द्या. आता जे प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, प्रोटिस्टंट आहेत, फंगन आहे, या सगळ्यांमध्ये व्हायरस सोडून प्लांट, ॲनिमल, फंगाय, प्रोटिस्टंट या सगळ्यांच्या प्रत्येक सेलमध्ये दोन्ही न्यूक्लिक ॲसिड असतात. इन हिंदी, वायरस को छोड़ के संसार के हर जीव की सेल में दोनों न्यूक्लिक एसिड है, DNA एंड RNA. ठीक है. म्हणजे समजा एखाद पी प्लांट आहे, वाटाण्याचं प्लांट, टोमॅटोचं प्लांट, बैंगन का पौधा, उसकी हर सेल में DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड है. हमारी सेल में DNA RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड है. किसी मच्छर मकड़ी की सेल में DNA RNA दोनों है, किसी फंगस में DNA RNA दोनों है. ठीक है. तो
इन सभी में जेनेटिक मटेरियल कौन है? ऑब्वियसली डीएनए. या सगळ्यांचं जेनेटिक मटेरियल काय आहे? डीएनए आहे. मग जर डीएनए असेल जेनेटिक मटेरियल, तो हा आरएनए काय आहे यांचा? तो सर सारे सजीव वायरस को छोड़ के उनका अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उनका आरएनए नॉन जेनेटिक है. म्हणून हा आरएनए असतो नॉन जेनेटिक आरएनए. व्हायरसेस सोडून सगळ्या सजीवांच्या सेलमध्ये डीएनए आणि आरएनए दोन्ही न्यूक्लिक ॲसिड असतं. सगळ्यांचं डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे, तर सगळ्यांचा आरएनए कोण झाला? नॉन जेनेटिक झाला. अब हमने वायरस को क्यों अलग किया सर? सोचो, वायरस ऐसे अजीब है कि उनमें डीएनए प्लस आरएनए दोनों नहीं रहता. व्हायरस मध्ये डीएनए आरएनए दोन्ही न्यूक्लिक ॲसिड नसतात. या तो सिर्फ आरएनए है या सिर्फ डीएनए. व्हायरसमध्ये डीएनए आणि आरएनए दोन्ही न्यूक्लिक ॲसिड कधीच नसतात. हा नीट क्वेश्चन आहे. व्हायरसेस मे हैव आरएनए, मे हैव डीएनए, बट नेवर बोथ. अब जितने वायरस में आरएनए है उनका आरएनए हो गया जेनेटिक. तो पहा बरं आता आरएनए किती प्रकारचे झाले? सर, इन सम व्हायरसेस आरएनए इज जेनेटिक and elsewhere RNA is non-genetic. So, I could write that RNA has two types: genetic RNA and non-genetic RNA. पहा बरं आता RNA चे टाइप्स. तो व्हायरसेसमध्ये आरएनए काय आहे? जेनेटिक आहे. आणि व्हायरस सोडले तर बाकी सगळ्या सजीवांमध्ये आरएनए काय आहे? नॉन जेनेटिक. तो इसीलिए आरएनए के टाइप्स कितने हैं? 2, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक. और सर, जेव्हा जेव्हा आरएनए जेनेटिक असतो तेव्हा तेव्हा तो इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतो, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करतो. पण जेव्हा तो नॉन जेनेटिक असतो तेव्हा, आता लक्ष द्या पक्क, प्लांट्स, ॲनिमल्स, फंगाय, प्रोटिस्ट, मोनेरन्स म्हणजे व्हायरस सोडून द्यायचे, सगळ्यांच्या सेलमध्ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल आहे आणि सगळ्यांकडे जो आरएनए आहे तो जेनेटिक मटेरियल नहीं. मतलब हमारी हर सेल में आरएनए है. हाँ, हमारी हर सेल में आरएनए है, पर वो है नॉन जेनेटिक. म्हणजे तो काम काय करतो? प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिझम. म्हणजे आरएनए जो नॉन जेनेटिक आहे तो प्रोटीन सिंथेसिस करतो, तो मेटाबॉलिझम करतो. ध्यान रहे, आरएनए is very unstable. It acts as a catalyst also, enzyme. 23S rRNA. 23S rRNA. याला राइबोझाइम नावाचं एन्झाइम म्हणतात. संसार के सारे एंजाइम प्रोटीन रहते. दुनिया में जितने एंजाइम है सबके सब प्रोटीन है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो एंजाइम है राइबोझाइम. तो प्रोटीन आहे का? नहीं. तो कौन आहे? 23S rRNA. तो
हमारा सवाल था कि नॉन जेनेटिक आरएनए करता क्या है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए स्प्लाइसिंग करता है, एंजाइम का काम करता है, मेटाबॉलिझम में इन्वॉल्व आहे, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व आहे. आपण लक्षात ठेवायचं प्रोटीन सिंथेसिस, कारण ते आपलं पुढचे चॅप्टर येणार आहे. तो ठीक आहे सर. बेसिकली आरएनएचे टाईप्स आहेत जेनेटिक आणि नॉन जेनेटिक. जेनेटिक कुठं? व्हायरसेसमध्ये नाही म्हणायचं. आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस में, ऐसा नहीं. आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस, क्योंकि बाकी वायरस में तो डीएनए भी है. जो आरएनए है नॉन जेनेटिक, तो वहां उसके 3 प्रकार है. सो नॉन जेनेटिक आरएनएचे प्रकार 3 आहेत. मेसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए. मेसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हे तिघं कोण आहे? नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए. So in 5 minutes, let us take a recap of the lecture. RNA is another type of nucleic acid. RNA एक प्रकारचं न्यूक्लिक ॲसिड आहे. RNA is single stranded and that single strand is polynucleotide chain. तो शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट. सो इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. सो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है. ओके. तो आरएनए इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. It is a polynucleotide chain. The polynucleotide chain consists of thousands of nucleotides connected by phosphodiester bond. The 4 types of nucleotides present in RNA are adenine ribonucleotide, guanine ribonucleotide, cytosine ribonucleotide, uracil ribonucleotide. फिर हमने कहा in RNA there are 3' and 5' free ends. RNA मध्ये 3' 5' free ends असतात. फिर हमने कहा कि ये जो RNA है उसका स्ट्रक्चर कैसे है. तो हर बार राइबोज शुगर पहले को नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, हे झाले राइबोन्यूक्लियोसाइड. 5वे को फॉस्फेट. हे झाले राइबोन्यूक्लियोटाइड बट नॉट चेन. Now this is polynucleotide chain. This is 5' end phosphate free. This is 3' end OH free. Nitrogen bases are unpaired because it is single stranded. तो हे झालं RNAचं स्ट्रक्चर. इथं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग नसते, फक्त फोल्डेड रिजनमध्ये असते. नंतर आपण म्हटलं डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. पहला डिफरेंस स्ट्रैंड के आधार पे, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड. दूसरा डिफरेंस शुगर के आधार पे, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज. तीसरा डिफरेंस नाइट्रोजन बेसिस के टाइप, एजीसीटी, एजीसीयू. चौथा डिफरेंस
base pairing, always present. Base pairing is present in RNA only in folded region. Purine pyrimidine ratio always same in DNA. It is not necessarily same in RNA. DNA is mainly concentrated in nucleus, RNA in nucleus and cytoplasm. DNA produces DNA by replication, but RNA is produced from DNA by transcription. DNA is stable, less reactive. RNA is unstable, more reactive. DNA is better for storing the information. RNA is better for expression of the information. हे आपण डिफरन्सेस पाहिले. नंतर आपण टाइप्स पाहिले कि RNA 2 प्रकार के हैं, जेनेटिक, नॉन जेनेटिक. Genetic RNA is present in some virus. Non-genetic RNA is present in all organisms. Plants, animals, protistants, monerans, fungi. Non-genetic RNA चे प्रकार आहे 3. मेसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA. तो mRNA, rRNA, tRNA are non-genetic RNA, and this non-genetic RNA help in protein synthesis, metabolism. They act as a catalyst, they act as a spliceosome. अब मेरा अगला लेक्चर जो है वो है डिटेल्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, और उस लेक्चर में डिटेल में मैसेंजर आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए. इस पे 2 लेक्चर्स होंगे और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.